আজকেও পালিয়ে গেল। হাউ ডে ইউ! তুমি আজকেও ওদেরকে ধরতে পারোনি? আমি জানি তোমাদের দ্বারা এই কাজটা হবে না। তোমাদেরকে এই কেসটা দিয়েই আমি ভুল করেছি। এই গ্যাংস্টাররা আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের চোখে ধুলো দিয়ে একের পর এক চিন্তা বাড়িয়েই চলেছে। আর আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট কি করছে? কিচ্ছু করতে পারছে না। এটা আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কাছে খুবই লজ্জাজনক। আর আজকে আপনাদের সামনে এই ঘটনা ঘটে গেল, আর আপনারা কিছুই করতে পারলেন না। স্যার, আমরা আপ্যায়ন চেষ্টা করে চলেছিলাম, কিন্তু চুপ, একদম চুপ। আসলে আমারই ভুল হয়েছে তোমাদের মতন ইন্সপেক্টরদেরকে এই কেসটা হ্যান্ডেল করতে দেওয়ার জন্য। স্যার, গ্যাংস্টাররা প্রচণ্ড চালাক। ওদের আগে থেকে সব ছক সাজানো থাকে। আমরা যাওয়ার আগে ওরা সব খবর পেয়ে যায়। আমি জানি তোমাদের দ্বারা কিচ্ছু হবে না। এই কেসটা শহীদুলকেই দিতে হবে। স্যার, শহীদুলকে? সে কি আমাদের এই পুলিশ ডিপার্টমেন্টে কাজ করে? না, সে পুলিশের চাকরি করে না। সে হচ্ছে একজন সিআইডি অফিসার। আজ পর্যন্ত এমন কোনো কেস নাই যে সে সলভ করতে পারেনি। শহীদুল তোমাদেরকে যেটা বলবে তোমরা সেটাই করবা, ঠিক আছে? ওকে স্যার। মাল সব ঠিকঠাক আছে তো? হ্যাঁ, মাল সব ঠিকঠাক আছে। এই নাও, এখানে 10 লাখ টাকা আছে। ভাই, আমি দুদিন ধরে কিচ্ছু খাইনি। আমাকে দুটো খাবার দেন না। আমি খিদির যন্ত্রণা জ্বালা সহ্য করতে পারছি না। এই সত্য, আমার কাছে কোনো খাবার নেই। ভাই, এরকম বলেন না। আমার সত্যি খিদে লেগেছে। আপনারা যতক্ষণ আমাকে খাবার দেবেন না, আমি ততক্ষণ আপনাদের পা ছাড়বো না। আমাকে খাবার দেন। তোর খাবার খাওয়ার অনেক শখ হয়েছে না? এখানে না খেয়ে একবার ওপরে গিয়ে খাস। ইন্সপেক্টর, নিয়ে যাও ওদেরকে। এই চ। শেট! হ্যালো বস, মামুনকে আর আরিফকে পুলিশে ধরে ফেলেছিল। বস, ওরা পুলিশকে সব বলে দেবে বলে আমি ওদের দুজনকে খালাস করে দিয়েছি। ভেরি গুড। কেউ টের পায়নি তো? না বস, কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারেনি। হ্যালো, সিআইডি অফিসার শহীদুল বলছেন? ইয়েস স্যার। তুমি কি মিশনের জায়গায় পৌঁছে গেছো? ইয়েস স্যার। তবে স্যার, ওর আজকে আমার হাত থেকে একটুর জন্য বেঁচে গেল। কিন্তু স্যার, এই কাজটা করতে গিয়ে অনেক ইন্টারেস্ট হবে। শহীদুল, সব জায়গায় তুমি ইন্টারেস্ট বিষয়টা খুঁজে পাও, কিন্তু এই বিষয়টা খুবই সিরিয়াস। এই কাজটা করতে গিয়েই আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের অনেকেই ব্যর্থ হয়েছে। আমি চাই তুমি সফল হয়ে ফিরবে। স্যার, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। এই মিশনটা কীভাবে সাকসেসফুল করতে হয় সেটা আমার ভালো করে জানা আছে। আচ্ছা স্যার, আমার বিষয়ে কি ওখানে সব কিছু জানিয়ে দিয়েছেন? আপাতত এখন আমি কাউকে জানাইনি, কিন্তু তুমি চাইলে আমি সবাইকে জানিয়ে দেবো। আপাতত এখন কাউকে জানানো দরকার নেই। দরকার হলে আমি সবাইকে জানিয়ে দেবো। ওকে স্যার, এখন ফোনটা রাখি। তোকে অনেকদিন স্নান করানো হয়নি, আজকে আমি তোকে স্নান করাবো। না না, ওভাবে কান্না করবি না। তুই তো ভালো ছেলে, ওভাবে কান্না করিস না। থাক, বেশিক্ষণ স্নান করালে আবার ঠান্ডা লেগে যাবে। আজকে তোর বাবা আসলে তোর জন্য ভালো মন্দ খাবার এনে দিতে বলবো। ওর বাবা আসলে আমাকে দুটো খাবার দিতে বলবা। আমি ওর বাবার হাতে খাবার খাবো। না না, ওর বাবার ভাগ আমি কাউকে দেবো না। আমি তোর বাবার ভাগ চাচ্ছি না, আমি তো একটু খাবারে ভাগ চাচ্ছি। আমি না অনেকদিন ধরে ভালো মন্দ খাবার খাইনি। তার মানে তুমি ভালো মন্দ খাবার খেতে? হ্যাঁ? না, আমি ভালো মন্দ খাবার কোথায় পাবো? তুমি কি পাগল? কি হলো, ওভাবে তাকিয়ে আছো কেন? বলো, তুমি কি পাগল? না না, আমি পাগল না। আমাকে যে পাগল বলে সে নিজে একটা পাগল। আচ্ছা, তুমি কি পাগলি? না, আমি পাগলি না। আমাকে যে পাগলি বলে তার
আমার 14 গোষ্ঠী পাগল। আমি এরকমই থাকতে পছন্দ করি। একটা পাগল কখনো নিজেকে পাগল দাবি করে না, তার মানে এই মেয়েটা সত্যি পাগলি। এত সুন্দর চেহারা, ছেলেটা পাগল হলো কি করে? ছেলেটা আমার মতো কেউ না তো? তুমি আমার মতন কেউ না তো? কি ব্যাপার, ছেলেটা আমার মনের কথা বুঝে ফেললো নাকি? না না, আমি তোমার মতো হতে যাব কেন? আমি তো একটা মেয়ে মানুষ। তাই তো, আমি তো ভেবে দেখিনি। তার মানে তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার বন্ধু। পাগল নাকি আমি? তোর কেন বন্ধু হতে যাব? আমি তো রাজরানী, আমার তো রাজাদের সঙ্গে উঠা বসা। এই পাগলি, তুই কার সাথে কথা বলছিলিস? তাড়াতাড়ি বল, মালগুলো সব কোথায় আছে? কি রে, বলছিস না যে? তাড়াতাড়ি বল। আগে পাসওয়ার্ড দাও, তারপরে বলবো। ও, আমি তো সব ভুলে গিয়েছিলাম। এই নে, সব মিলিয়ে নে। এবার বল, মালগুলো সব কোথায় আছে? ওই গাছের নিচে। ও, তাহলে এই ব্যাপার। এখন ওদেরকে ধরলে হবে না, আগে আমাকে জানতে হবে ওদের দলের লিডার কি। দেখেছিস মা, অন্যের কাছ থেকে আমি কিভাবে হাতিয়ে নিলাম? এই জন্য তুমি পাগলির মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলে মানুষজন আমাকে অনেক টাকা দেয়। তুই দেখবি, তুই দেখবি, দাঁড়া। এ তো দেখ, এ তো দেখ, কতগুলো টাকা। তুই নিবি? নে। এই, তুই জ্বালাস নি তো, তুই এখান থেকে যা। আমার কাছে অনেক টাকা আছে, তুই এখন এখান থেকে যা যা। বস, মাল এনেছিস? হ্যাঁ বস। শালা, আমার সাথে বাটপারি? তুই কি ভেবেছিস আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না? আমার চারিদিকে চোখ থাকে। এই, তোরা কান খুলে শুনে রাখ, আমার সাথে যে বাটপারি করবে তার সাথে ঠিক এরকম অবস্থাটাই হবে। শুনতে পেলি তো তোরা? হ্যাঁ বস, আমরা সব বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ ওস্তাদ। এই দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, কে আমাকে উস্তাদ বললো? এই, তুই বলেছিস না তোকে আমি জন্ম দিয়েছি, না তোর মায়ের কাছে শুয়েছিলাম, যে তুই আমাকে উস্তাদ বলছিস? তুই জানিস না আমাকে উস্তাদ বললে আমার মাথা ঠিক থাকে না? সরি বস, আমাকে এবারকার মতো ক্ষমা করে দিন। হ্যাঁ, আমার জীবনে আমি আর আপনাকে কোনোদিন উস্তাদ বলবো না। আরে আরে আরে, ভয় পেয়েছিস মনে হচ্ছে। না না, তোদেরকে আমি মারবো না। তোদেরকে মারলে আমার ব্যবসাটাই তো লাটে উঠে যাবে। হ্যালো হ্যালো স্যার, মাল ঠিকঠাক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। ভেরি গুড। আর হ্যাঁ স্যার, দুবাই থেকে ছোটন ভাই ফোন করেছিল, তার 50 লাখ টাকা লাগবে। আচ্ছা ঠিক আছে, হয়ে যাবে।
ডিল ফাইনাল। ওকে স্যার। তুমি তুমি সে পাগলটা না? হ্যাঁ, তুমি একদম ঠিক ধরেছো, আমি সেই পাগল। কিন্তু আমি পাগল সেজে অভিনয় করেছিলাম এই তোমাদের মতন ক্রিমিনালদের ধরার জন্য। আসলে আমি হলাম সিআইডি অফিসার। আমি যেটা ভেবেছিলাম সেটাই সত্যি। আমি তোমাকে প্রথম দিন দেখেই চিনে ফেলেছিলাম তুমি পাগল না। আচ্ছা, তুমি একটা মেয়ে হয়ে এসব জঘন্য কাজ করতে তোমার লজ্জা লাগে না? লজ্জা? আসলে জানেন, আমার একটা জীবন ছিল, পড়াশোনা করতাম, পরিবারের সঙ্গে সুখে থাকতাম, কিন্তু সেই সুখ আর বেশি দিন টিকলো না। আমার একটা স্বপ্ন ছিল যে আমি পুলিশ ইন্সপেক্টর হয়ে মানুষের সেবা করব, কিন্তু আমার আর কিছু করার ছিল না। পরিবারকে বাঁচাতে গিয়ে আমি এই কাজে ঢুকতে বাধ্য হয়েছি। মানে তুমি কি বলতে চাচ্ছ? তাহলে শুনুন। বুড়ি, এই বুড়ি, আয় খেয়ে যা। হ্যাঁ মা। মা, তুমি জানো আমার না খুব শখ আমি একদিন পুলিশ ইন্সপেক্টর হয়ে মানুষের সেবা করব। না মা, আমি তোকে পুলিশ ইন্সপেক্টর বানাবো না। তুই যদি পুলিশ হোস, তোর উপর যদি কেউ শত্রুতা করে, তোর জন্য কোনো ক্ষতি করতে চাই, আমি যে তোকে ছাড়া থাকতে পারবো না। তুই ছাড়া আমার কি আছে বল? না মা, আমাকে পুলিশ হতেই হবে, কারণ এই দেশের নারীর উপরে খুব অত্যাচার হচ্ছে, আইনেও কিছু করতে পারছে না। সেই জন্যই আমি পুলিশ হয়ে এই বেআইনি কাজ আমি বন্ধ করব। আচ্ছা মা, তুই পুলিশই হোস। এখন যত খেয়ে নেগা। তোমরা কারা? আর তোমরা আমার মাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছ কেন? ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমার মাকে। তোর মাকে আমি ছেড়ে দেবো, কিন্তু তোকে আমার দলে কাজ করতে হবে। না, আমি আর নোংরা কাজ করতে পারবো না। পারবি না? তাহলে তোর মাকে মেরে দিই। আমাকে মেরো না মা, তুই আমাকে বাঁচা, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। আমার মাকে ছেড়ে দাও, আমার মাকে ছেড়ে দাও বলছি, ছেড়ে দাও। তোর মাকে আমি ছেড়ে দেবো, কিন্তু তোকে আমার দলে কাজ করতে হবে। আমার দলে একটা মেয়ে ছেলে দরকার। আমার মাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাদের দলে যোগ দিতে রাজি আছি। তুই যতদিন আমার দলে কাজ করবি, ততদিন তোর মা ভালো মন্দ খাবে, ভালো মন্দ পড়বে। আর তুই যদি আমার সাথে বেইমানি করিস, তাহলে তুই তো ভালোভাবে বুঝতে পারছিস তোর মার। তারপর থেকে আমি এই কাজে যোগ দিই। আপনি জানেন, আমি এই কাজ থেকে বেরোনোর অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমি আমার মাকে বাঁচানোর জন্য আমি এই কাজটা করতে বাধ্য হয়েছি। ও, শুনে খুব খারাপ লাগলো। আচ্ছা, তুমি ওই গ্যাংস্টারের মুখটা দেখেছিলে? ওর মুখে মাস্ক পরা ছিল। ও, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই, আমি তোমাকে প্রথম দেখাতেই অনেক ভালোবেসে ফেলেছি। আমিও তোমাকে প্রথম দেখাতে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। শহীদুল, আমাকে একটা সুযোগ দেবে? আমি আমার পাপে প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। শহীদুল, আমি ওই গ্যাংস্টারকে উচিত শিক্ষা দিতে চাই। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যখন নিজের হাতে স্যারেন্ডার করছো, তাহলে কোনো ব্যাপার নেই। আমি তোমাকে স্যারের কাছে নিয়ে যাব আর স্যারকে সব খুলে বলবো। কিন্তু তোমাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। কি কাজ বলো? আমি তোমার সব কাজ করতে রাজি আছি। তোমাকে ওই গ্যাংস্টারের দ্বিতীয় টার্গেট কোথায়, সেটা তোমাকে যা করে হোক জানতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে। আর শোনো, ওই গ্যাংস্টার অনেক ভয়ঙ্কর, তুমি তোমার নিজের খেয়াল রাখবে। আর কোনো ডিটেলস পেলে আমাকে সর্বপ্রথম জানাবে, ওকে? শালা, যে আমার মাল ডেলিভারি করতে পারে না, তাকে আমি ডেলিভারি করে দিই। আরে পিঙ্কি, এই তোরা কান খুলে শুনে রাখ, এটা আমার খাস লোক। এ যদি না থাকতো, তাহলে আমার ব্যবসা কবেই লাটে উঠে যেত। পিঙ্কি, তুই বল তোর কি চাই? আজকে আমি তোর
সব ইচ্ছা পূরণ করব। আমি আর এই কাজ করতে চাই না। কি বললি? কাজ করবি না? আরে আরে, তোরা ভয় পাস না, তোদের সব বাইক আমি ছেড়ে দেবো, কিন্তু তোদেরকে আমার লাস্ট একটা কাজ করে দিতে হবে। 15 তারিখে 50 কোটি টাকার মাল সাপ্লাই হবে, আর এই মিশনটা যদি কমপ্লিট হয়ে যায় তাহলে আমি ইন্ডিয়ার 1 নাম্বার গ্যাংস্টার হয়ে যাব। তখন আমাকে কোনো আইনি ধরতে পারবে না। হ্যালো। হ্যালো, আমি সিআইডি অফিসার শহীদুল বলছি। হ্যালো শহীদুল, আমি পিঙ্কি বলছি। আগামী 15 তারিখে একটা বড় ডিল ফাইনাল হবে। ওটা যদি সাকসেসফুল হয়ে যায় তাহলে ও ইন্ডিয়ার মধ্যে 1 নাম্বার গ্যাংস্টার হয়ে যাবে। তখন আর কোনো আইনি তার কিছুই করতে পারবে না। তুমি এসব কি বলছো? 15 তারিখে কোথায় আর কখন? সেন্টার মিলের কাছে পুলিশ বাহিনী রেডি করে রাখবে, ঠিক 3:30। যে করেই হোক এই মিশনটা বন্ধ করতেই হবে। এই মিশনটা যদি ও সাকসেসফুল হয়ে যায় তাহলে ইন্ডিয়ার অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। হ্যালো পিঙ্কি, আমি যেটা বলছি শোনো। হ্যালো পিঙ্কি, হ্যালো, শেট। তুই सास की बात सुनकर एकदम से बड़ी बहू बोल उठती है। नहीं मम्मी जी, मैं इन दोनों के साथ कुछ नहीं कर सकती। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, फिर भी ये मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मानती। अरे जेठानी जी, जानबूझकर मुझे डबल काम करवाती है आप, और छोटी मुझसे टेढ़े मुंह ही बात करती है। इन दोनों के बीच हमेशा सैंडविच बन जाती है मेरी, और मैं हमेशा आलू की तरह बीच में मसली जाती हूँ। मम्मी जी, इन दोनों को लगता है कि मैं छोटी हूँ तो इनके पैरों तले दब जाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना इन दोनों का है। बड़ी आई दोनों मेरी चुगली करने के लिए, मुझे क्या कम समझ रखा है। तीनों बहू एक दूसरे से बहस करने लगती है और सास दोबारा ये देखकर टेंशन में आ जाती है और सबसे कहती है, चुप हो जाओ, अब से तुम तीनों सारे काम एक साथ करोगी, आंख बंद करके एक दूसरे की बात सुनोगी।
तुम तीनों इस बात को गांठ बांध लो, वरना अगली छुट्टियों में तुम्हारा अपना मायके जाना कैंसिल। सास की बातें सुनकर डर के मारे तीनों हामी भर देती हैं। जी मम्मी जी, मैं समझ गई। हाँ मम्मी जी, जैसा आप कहें। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। तीनों बहू सास की बात को गांठ बांध लेती है और वादा करती है कि अब से सारे काम वो तीनों एक साथ मिलकर ही करेंगी। ये सब देखकर सास खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। नीचे जाकर वो देखती है कि घर में शर्मा जी आए हुए होते हैं। सास जोर से आवाज लगाकर कहती है, अरे बहू, जरा चाय बनाकर तो लाना, शर्मा जी आए हैं। सास की बात सुनकर तीनों बहू तुरंत किचन की ओर भागती है और चाय बनाना शुरू कर देती है। मुझे तो एकदम मसाले वाली कड़क चाय पसंद है, तो हम शर्मा जी के लिए मसाले वाली चाय ही बनाएंगे। अरे नहीं दीदी, गर्मी के मौसम में मसाला चाय कौन पीता है? मैं तो शर्मा जी के लिए इलायची वाली चाय ही बनाऊंगी। ये कैसी बात कर रही हैं आप दोनों? मेरी मम्मी ने सिखाया है कि मेहमान को ज्यादा दूध और शक्कर वाली चाय देनी चाहिए, वरना वो घर वालों को कंजूस समझते हैं। तो मैं तो शर्मा जी को ऐसी ही चाय दूंगी। तीनों बहुएं अपने अपने तरीके से चाय में शक्कर, मसाला, पत्ती सब डाल देती है। उबलने के बाद तीनों मिलकर चाय बाहर लेकर जाती है और शर्मा जी और सासू माँ को देती हैं। चाय पीने के बाद शर्मा जी सासू माँ को देखकर शर्मा जाते हैं और शर्मिंदा महसूस करते हैं कि आखिर उन्होंने चाय पीने के लिए हामी क्यों भरी। सासू माँ भी चाय पीना शुरू करती है और कहती हैं, अरे बहू, ये कैसी चाय बनाई है? चाय है या मीठे दूध की बासुंदी? हाँ, चाय अच्छी नहीं लगी क्या? कोई बात नहीं, हम पराठा बनाकर लाते हैं। चलो चलो अंदर। हाँ हाँ चलो। हाँ आती हूँ मैं भी। नहीं नहीं, मेरा पेट चाय ने ही चौपट कर दिया, वही काफी है। पराठे से पोपट नहीं करवाना, मैं तो चलता हूँ। शर्मा जी चुपचाप पतली गली से निकल जाते हैं। अगले दिन सास बहुओं से कहती है, अरे बहू, जाओ जाके ऊपर के गेस्ट हाउस की सफाई कर दो। कल हमारे यहाँ मेरे दूर के रिश्तेदार आने वाले हैं, तो पूरे कमरे को चमका देना, समझी? तीनों बहू सास की बात को मानकर ऊपर सफाई करने चली जाती हैं और तीनों कमरे की सफाई चालू कर देती है। बड़ी बहू मकड़ी के जाले साफ करती है, तो बीच वाली झाड़ू लगाना और छोटी वाली सर्फ डालकर जमीन धोना शुरू कर देती है। अरे दीदी, जेठानी जी, अभी मैंने पूरी फर्श धोई और आप फिर से धूल नीचे गिरा रही हैं। और मछली जेठानी जी, आप बिना झाड़ू की धूल यहाँ छटक रही हैं। अरे तीनों को साफ करना है, एक साथ सफाई करते हैं ना। अरे वही तो, हम साथ साथ हैं, घर साफ साफ है। तीनों बहू ऐसे ही काम में उलझ जाती है और 2 घंटे तक एक ही कमरे की सफाई करती रहती है। बहुत देर से अपनी बहुओं को ना देखने के कारण सास ऊपर कमरे में उन्हें देखने जाती है, लेकिन कमरे में घुसती ही वो गीली फर्श पर फिसलने के कारण नीचे गिर जाती है। ओरी मोरी मैया, हड्डी मरोड़ के रख दी। आए, मेरी तो कमर ही टूट गई रे। तीनों बहुएं सास को उठाती हैं और बिस्तर पर सुला देती है। अरे मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, दबा दो, आराम मिलेगा। हाँ जी माँ जी। अरे जी माँ जी, जी माँ जी। और तीनों बहुएं एक साथ सास के हाथ को दबाना शुरू कर देती हैं। माँ की तो चीख ही निकल जाती है और नतीजा ये होता है कि सास के बचे हुए शरीर में भी दर्द उठ जाता है। हाय राम, ये क्या कर दिया तुम तीनों ने। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है कि तुम जैसी बहुएं मुझे मिली। हे भगवान, पूरे शरीर में दर्द बढ़ गया है। अब तो पता नहीं कि चल भी पाऊंगी या नहीं। माफ करो, मुझे गलती हो गई मुझसे कि तुम तीनों को एक साथ काम करने के लिए बोला। सोचा था तीनों मिलके अच्छे से काम करेगी, लेकिन बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा।
तुम लोगों ने ये बात ना आज साबित करके दिखा दी। तुम तीनों को तो समझाना यानी मानो भैंस के आगे बीन बजाना है। तुम्हें अकेले अकेले काम करना है ना, तो अब से तुम अकेले ही अपना अपना काम करो। तीनों बहुएं वहां से जाने लगती है। अरे कहाँ जा रही हो? आप ही ने तो कहा कि अपना अपना काम करो, तो मुझे मुल्तानी मिट्टी लगानी है। अरे मुझे भी तो नेल पॉलिश लगानी है। मुझे ना मेहंदी लगानी है। सास अपना सर पीट लेती है और कहती है, अरे मुझे भी लगाना है कुछ। क्या माँ जी? क्या माँ जी? क्या माँ जी? तुम्हारे घर वालों को फोन तुम्हारी हरकतें बताने के लिए। अपने पराए घर की लड़ाइयाँ कितनी भी हो, लेकिन ये भी सच है कि किसी पर कोई आपत्ति हो तो अपना ही परिवार साथ देता है। भैया मेरे पीछे पुलिस लगी है, प्लीज मुझे बचा लो। रवि और राज दो भाई, लेकिन दोनों में कभी नहीं पटी। अरे क्या हुआ छोटे, क्या कर दिया तूने? अरे कुछ नहीं भैया, मेरा दोस्त है ना राजू, वो मुझे लेकर बैंक गया था। मुझे नहीं पता भैया कि वो वहाँ बैंक लूटने जा रहा है। मैं उसके साथ बैंक में घुसते ही सीसीटीवी कैमरे में दिख गया हूँ। अब पुलिस मुझे ढूंढ रही है भैया, मुझे बचा लो। राज कुछ सोचता है, फिर कहता है, ओके तुम यहीं रुको, मेरा एक दोस्त पुलिस में है, मैं बात करता हूँ। तभी वहाँ रवि की बीवी राज की बीवी के साथ आ जाती है। तुम लोगों के घर जब तक पुलिस का आना जाना है, बच्चों को यहीं छोड़ दो, उन पर असर ठीक नहीं पड़ेगा। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। चलो चलो, कौन है रवि, थाने चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। अरे वो तो पुलिस स्टेशन चलकर ही पता चलेगा कि कुछ पता है कि नहीं, चलो। कहानी का फ्लैशबैक। भैया मुझे मेरे मकान में हक चाहिए ही चाहिए। अरे लेकिन छोटे, अभी मेरे बच्चों पर काफ़ी खर्चा है, तेरी भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, बजट बिल्कुल नहीं है कि मैं अलग होकर रहूं। देख लो भैया, 1 महीना है तुम्हारे पास, जल्दी से घर खाली कर दो। अरे कैसी बात कर रहे हैं भैया, मेरे शरीर में अभी इतनी हिम्मत भी नहीं कि घर को खाली करे। तो क्यों अपना पोषण बेचा भाभी? अरे तुम तो जानती हो, पिताजी की बीमारी के कारण उन्हें हमारी ज़रूरत थी, कैसे आते पैसे। ससुर जी तो बूढ़े थे भाभी, उनकी बीमारी में भी पैसे लगाना कौन सा अकल का काम था? तो क्या पिताजी को मैं मरने के लिए छोड़ देता? अरे रवि तू तो समझ, पापा को हमारी ज़रूरत थी, उन्होंने हमारे लिए हर वो काम किया जिससे हमें खुशी मिले। बैक टू रवि जो जेल में बैठा है। ये मैंने क्या कर दिया था? मैं ना पिता का हुआ ना ही भैया का। मेरे साथ जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। तभी वहां पुलिस वाला आता है। रवि तुमसे कोई मिलने आया है। भाभी आप यहाँ क्यों आई? पुलिस स्टेशन है ये भाभी। भैया आपकी जगह मेरा भाई होता तो क्या मैं नहीं आती? अच्छा ये खाना ले लीजिए, खा लीजिएगा। आपके भैया लगे हैं वकीलों और पुलिस वालों से बात करने में, डरने की कोई बात नहीं। जब आपने गुनाह किया ही नहीं तो सज़ा भी नहीं मिलेगी। रवि भाभी को देखकर रोने लगता है। घर में साक्षी चुपचाप बैठी होती है कि तभी सोनम कहती है, अरे साक्षी क्या हुआ, परेशान क्यों हो रही हो? भाभी अभी अभी पुलिस स्टेशन से खबर आई है, इन्हें बड़े जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। मैं क्या करूंगी भाभी? रो मत, हम अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। लेकिन उसमें तो बड़े पैसे लगेंगे दीदी, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे क्यों, ये मकान है ना, और मेरे कुछ गहने भी है। साक्षी की आंखों में पानी आ जाता है। पर दीदी ये तो आप और भैया की मेहनत की कमाई है। पापा के बाद भी तो हम लोगों का सब खत्म हो गया था। पापा को तो बचा नहीं पाए, लेकिन भैया को ज़रूर बचा लेंगे। और भगवान चाहेंगे ना तो दोनों भाई मिलकर इससे भी बड़ा मकान खड़ा कर लेंगे। साक्षी। थोड़ी देर में राज वहाँ आता है। सोनम सही कह रही है साक्षी, पैसों की कमी के कारण किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलती।
राज एक अच्छा सा वकील करता है। सोनम और साक्षी बचाए पैसे और अपने गहनों को बेचकर रवि का केस लड़ते हैं और जल्द ही रवि जेल से बाहर आ जाता है। रवि राज को गले लगाकर कहता है, भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझे साक्षी ने सब कुछ बताया है। भैया आपने मुझ पर विश्वास किया, मेरे लिए दिन रात मेहनत की, भाभी ने अपने गहने तक बेच दिए। भैया आपने तो पापा के लिए भी पैसे नहीं देखे, लेकिन मैं बहुत ही सेल्फिश निकला। भैया एक आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। अरे भाई अपने तो अपने ही होते हैं, पापा ने हमारे लिए क्या नहीं किया ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और फिर तू तो मेरा भाई है, पैसे से बढ़कर रिश्ते होते हैं भाई। लॉकडाउन से पहले गीता के घर का नज़ारा कुछ ऐसा था कि रोहन ऑफिस जाता था और शिविन स्कूल। जिनके घर से जाने के बाद गीता काम खत्म करके बाकी समय आराम करती थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद ऑफिस और स्कूल घर में ही खुल गए और इससे गीता का हाल वो तो आपको देखने में ही मजा आएगा। शिविन, ओ शिविन, महाराज उठने के लिए क्या 21 तोपों की सलामी लेंगे? अरे बिस्तर से बाहर निकल, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। अरे तुम भी हद करती हो, स्पीकर की तरह चिल्लाने की क्या जरूरत है? दिख नहीं रहा मेरी कॉन्फ्रेंस चल रही है। अब कैमरा और स्पीकर ऑन कर रहा हूं, मुझे कोई शोर नहीं चाहिए। इस पर जैसे ही रोहन लैपटॉप का कैमरा और स्पीकर ऑन करता है तभी कुकर की सीटी बजती है। करा लो अब इसे चुप, लॉकडाउन नहीं हुआ, मेरी मौत का फरमान जारी हो गया। दोनों बाप बेटे ने नाक में दम किया हुआ है। ऐसा बोलकर गीता वहां से शिविन के कमरे में पहुंच जाती है, जहां शिविन अभी भी सो रहा होता है। ओ आलसी, अब अगर 5 मिनट में नहीं उठाना तो आज तेरा गेम और यूट्यूब कैंसिल। माँ की बात सुनकर शिविन बिना 1 मिनट गंवाए उठ खड़ा होता है। उठ गया, अभी नहाकर भी आता हूँ। ये नाटक कहीं और, मुंह पर गीला कपड़ा मार और पढ़ने बैठ। शिविन की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाती है, जिस पर गीता उसे वहां बिठाकर रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर में उसे कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो कमरे में वापस आती है। हाय राम, तुझे क्लास अटेंड करने के लिए बोला था, कैमरा ऑफ करके बिस्तर पर नाचने के लिए नहीं बोला था। मम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बाद में पढ़ा देना ना, वैसे भी अटेंडेंस तो लगी गई है। हाँ बेटा जरूर, बन जा तू, अभी से हम सबका बाप बन जा। अरे नहीं मतलब कहाँ से लाते हो इतना दिमाग, और पढ़ाई करते हुए ये चला कहाँ जाता है? नाइस क्वेश्चन, दिमाग से पूछकर बता दूंगा। शिविन की बातों से परेशान होकर गीता उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तभी वो कमरे से बाहर भाग जाता है। अब शिविन आगे आगे और गीता हाथ में चप्पल पकड़े उसके पीछे पीछे पूरे घर में दोनों घूम रहे होते हैं। इसी बीच वो रोहन के पास पहुंच जाता है और शिविन को मारने वाली चप्पल रोहन के लैपटॉप पर जाकर गिरती है। ओए माँ! मम्मी अब पापा को चप्पल मार रही हो? वो आज तक के रिपोर्टर, चुपचाप जाकर क्लास अटेंड कर ले, नहीं तो अगली तेरे पीछे लगेगी। इस पर शिविन वहां से चला जाता है, जिसके बाद रोहन गीता से कहता है, इस सर्कस के लिए कुछ बोलना चाहोगी? अरे क्या करूं, जब से तुम दोनों घर में रहने लगे हो घर अपने आप ही सर्कस बन गया है और मैं तुम्हारी नौकर, कभी बेटी को संभालो तो कभी बाप के नखरे उठाओ। इन्हीं सब उथल पुथल में दिन बीतते रहते हैं, जिसमें हर रोज घर के अंदर कुछ नया सियप्पा खड़ा मिलता है, जो ज्यादातर शिविन और रोहन के ऑनलाइन स्कूल और ऑफिस से रिलेटेड ही होता है। एक सुबह, शिविन चल उठ, आज की क्लास जल्दी है। कैमरा ऑफ करके आप अटेंड कर लो। अरे ऐसे छित्तर पड़ेंगे, दादी नानी सब एक साथ याद आ जाएंगी। गीता की लाख मशक्कतों के बाद क्लास तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद शिविन फोन इस्तेमाल करते हुए इंस्टाग्राम रील बनाने लगता है। रसोड़े में कौन था? तुम थी, मैं थी, कौन था? कौन था? हाँ मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अरे ओ गरीब के बेटे, आजा, मैं बनाती हूँ तुझे गरीब। मैं बताती हूँ रसोड़े में कौन था। पढ़ाई करने बोलो तो इनकी माँ मर जाती है, और ये पागलपंतियां जितनी मर्जी करा लो,
गीता शिविन को डांट रही होती है, तभी रोहन बीच में बोल पड़ता है। अरे बच्चा ही तो है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बेटे का साथ देने की इसी एक कोशिश में अब शिविन के साथ साथ रोहन भी गीता के गुस्से की सूली पर चढ़ जाता है। अगर बेटे पर इतना ही प्यार आ रहा है तो इसे क्लास अटेंड क्यों नहीं कराते, इसका होमवर्क क्यों नहीं कराते? उस समय तो बहुत जल्दी मीटिंग आ जाती है, वो काम मैं करूं और यहाँ इस बेफिजुली की चीज में तरफदारी करके बन जाओ महान। हे भगवान, कोई तो इनके ऑफिस और स्कूल खुलवाओ, मैं इन्हें और घर में नहीं सह सकती। अरे कुछ और मांग लेती, क्योंकि तुम्हारी ये विश इस साल तो पूरी होने से रही, कोरोना। हाय नास पिटे ने जिंदगी ही बर्बाद कर दी। खाए कोई पचाए कोई, कल मुझे चुन चुन कर सबको मेरी बद्दुआ लगेगी। उन्होंने दुनिया का और इन बाप बेटे दोनों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। गीता वहां से चली जाती है, जिसके बाद रोहन शिविन से कहता है, अरे तुम्हारी मम्मी इतनी भड़की हुई क्यों है? आपकी वजह से पूरा समय घर में रहते हो और उस पर कोई काम कराने की जगह बस ऑर्डर देते रहते हो। अच्छा बेटे, सारा इल्जाम मुझ पर, पूरा दिन तो वो तुम पर ही चिल्लाती है। हाँ, मतलब दोनों का 50-50 है, कुछ करना पड़ेगा। वो कहते ना, मेक द बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट। आई हैव एन आइडिया। वैसे तुम्हारी माँ सही कहती है, बहुत जुबान चलाने लगे हो, कम बोला करो। अगली सुबह रोहन और शिविन अपनी गलती को सुधारने के लिए गीता के उठने से पहले घर का आधा काम खत्म कर देते हैं, जिसे देखकर गीता खुश हो जाती है और फिर बाकी बचा काम वो तीनों मिलकर पूरा कर लेते हैं। जिसके बाद अब वो सब मिल बांट कर हर काम में एक दूसरे की मदद करते हुए लॉकडाउन का मजा लेने लगते हैं।